Hi students, can you hear me? Yes, sir. Thank you. So in the last class, we were discussing what are the different methods to reduce the penalties in branch related instructions. And as we know that in the branch related instructions, these penalties are due to the control hazard. So whenever the control hazard will occur and which will be due to the execution of the branch related instructions, in which the sequence of the regular sequence of instructions will have to be changed, and the next instruction will have to be fetched from the address which is still unknown for that particular instruction, and which needs to be calculated from the by the data path during the execution of during the execution stage of the that particular instruction. And we have already discussed in the last class, in which we have discussed that how the normal or regular data path or actual data path can be revised or can be revised, and due to that revision, the whatsoever the 3 clock cycles, extra 3 clock cycles were required for a branch related instruction will be reduced to the 1 clock cycle. So the meaning of this is, if we will go with the hardware approach, if we will improve the data path, then still 1 clock cycle, the stall for 1 clock cycle is still required. So that cannot be avoided by using the DLX path or by using the hardware improvement. So whatsoever the maximum enhancement can be done in the hardware part, that can be done by revising the DLX data path, and that particular technique or methodology or improvement or enhancement will be able to reduce the requirement of the clock cycle stalls from 3 to 1. But still 1 clock cycle will always be there. So then we have discussed that what are the different methodology, and during that discussion we have discussed that what is the stall pipeline. This is the number one, and this is nothing but the improvement due to the enhancement in the data part. That was the predict not taken, and we will assume that, let's suppose we are not going to, and we assume that the instruction which we want to execute, or the probability of that particular instruction or instructions related to branch which will be there in the program, the very high probability is that particular instruction will not be executed, means the condition will not be true. Okay, so we have discussed that. This then the predict taken. So in this particular methodology, we have discussed that this technique can be used in only those type of processors in which the address of the branch where we want to jump will always or will already be the part of the instruction. So there is no need to calculate the required address. Address is already the part of the instruction, and immediately after getting the information, either the instruction will have to jump or not, means either the condition is true or not, then there is no need to do any calculation, simply can go to the branch whatsoever the required address. So that can be done. That particular methodology is called predict taken. So as we have also discussed that this particular methodology cannot be used in the DLX processor, as in the DLX processor we will have to calculate the required address. जहाँ पे jump करना है हमें इस branch instruction में, उस particular address को हमें calculate करना पड़ता है. Calculate करने के बाद ही हम वहाँ पे jump करते हैं. तो इसलिए predict taken यानी ये methodology जो है वो DLX processor में नहीं use हो सकती, लेकिन in any other किसी और में हो सकती है, because these are the generalized types to reduce the impact of branch related instructions. And the last one is the delayed branch. So now today we will discuss what is the delayed branch. So now one thing I also make it clear to you and want to tell you, in the under the first chapter हमने control unit पढ़े थे, दो control unit. What one was hardwired control unit,
एंड अदर वाज माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। और वहां पे हमने ये डिस्कस किया था डिटेल में कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। What is the control unit or control logic unit? The role of the control unit is to control the things. कि कौन सा ऑपरेशन कब और कैसे होगा, उसके लिए कंट्रोल यूनिट जो है वो डिफरेंट कमांड्स रिलीज करता है। जैसे उसी डिस्कशन में मैंने आपको ये बताया भी था, इफ यू विल कंपेयर द रोल ऑफ द कंट्रोल यूनिट विद द डे टू डे एक्टिविटी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, तो वो भी ऑलमोस्ट वैसा ही कि आपको किसी ने कमांड दी कि गो आउट, लेट्स सपोज गो आउट, आपने उस कमांड को रीड किया, आपके दिमाग ने उसको रीड किया, फेच किया पहले तो कि आपने कहा क्या है, देन डी कोड किया कि गो आउट का मतलब क्या है। वंस यू विल कम टू नो दैट द गो आउट, द मीनिंग ऑफ द गो आउट इज आई विल हैव टू गो आउट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रूम से, then a part of your brain will release the commands to your legs and other IO peripheral जो आपकी बॉडी को यहां से उठा करके बाहर लेके जाएंगे, यानी एग्जीक्यूशन प्रोसेस को एग्जीक्यूट जो करेगा। सो ऑल दोज कमांड्स विल बी रिलीज्ड बाय योर ब्रेन। तो हमारे ब्रेन में भी एक कंट्रोल यूनिट होता है, हमारे ब्रेन में भी एक डी कोडिंग यूनिट होता है, हमारे ब्रेन में भी एक इंस्ट्रक्शन फेचिंग होती है कि कमांड फेच हुई, हमने उसको डी कोड किया, डी कोड करके उसकी अंडरस्टैंडिंग करी ईच एंड एवरी वर्ड की, व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ गो आउट और कम इन और एनी अदर वर्ड व्हाटसोएवर द कमांड वी आर गोइंग टू रिसीव थ्रू आवर ईयर्स। ओके, तो जो हमने कमांड सुनी, या हमारे दिमाग में पड़ी है, या हमने पढ़ के उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करी, कोई भी मोड हो सकता है, तो उसको एग्जीक्यूट करके हमने कंट्रोल यूनिट की हेल्प से उसको एग्जीक्यूट किया। So similarly, the control unit is of two types. One is called hardwired control unit, other is called microprogram. जो यहाँ पे जो हमने install pipeline पढ़ी थी, that can be done by the hardwired control unit. कि वो control unit, hardware control unit है, वो उसमें हमने improvement कर दी, उसका hardware change कर दिया, और वो अब जो है, जो पहले थर्ड स्टेज पे जा करके डेटा और एड्रेस कैलकुलेट कर रहा था, वो अब सेकंड स्टेज की जगह करेगा। तो हमारे दो साइकिल जो है वो कम हो जाए। बट हमने 2-3 लेक्चर पहले एक टेक्निक पढ़ी थी विच इज कॉल्ड शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग में क्या किया था हमने कि हमने सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन मींस इस तरह से हमने उस सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को चेंज किया था। जैसे मान लीजिए मैं प्रोग्रामर हूँ, मैंने अपनी मर्जी से एक सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को लिखा विदाउट नोइंग कि आइदर द टू consecutive instructions are dependent और independent on each other, यानी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, मैंने उसको नहीं देखा, मैंने सीधा प्रोग्राम लिख दिया अपने दिमाग के अकॉर्डिंगली, अपने फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंगली, अपनी कमांड्स को जानते हुए। बट इंटरनली व्हाट प्रोसेसर विल डू इन शेड्यूलिंग, वो क्या करेगा कि ऐसी इंस्ट्रक्शन को, सीक्वेंस ऑफ इवेंट को रीशेड्यूल कर देगा, शेड्यूलिंग की इवेंट्स की एग्जीक्यूशन कि एक इंस्ट्रक्शन के बाद उससे की डिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन ना आए, ताकि डेटा हजार्ड जो है वो रिमूव किया जा सके। तो उसने क्या किया, एक इंस्ट्रक्शन लिखी, उसके बाद इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन इफ पॉसिबल, देन इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन इफ पॉसिबल, देन इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन इफ पॉसिबल। तो उससे क्या होगा कि अगर आप दो कंसेक्टिव इंस्ट्रक्शंस को इंडिपेंडेंट बना दोगे, दोनों आपस की इंडिपेंडेंसी क्रिएट कर दोगे, पर्टिकुलरली जो सेकंड इंस्ट्रक्शन बाद में एग्जीक्यूट होने वाली है उसकी डेटा रिक्वायरमेंट अगर उससे पहले वाली इंस्ट्रक्शन से आप इंडिपेंडेंट बना दोगे तो डेटा हजार्ड अपने आप ही खत्म हो जाए। ऑल दीज थिंग्स विल आल्सो बी डन बाय द माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट नहीं करेगा, कोई डेटा सीक्वेंस नहीं करेगा, कंपाइलर जो है, कंपाइलर विद द हेल्प ऑफ माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट उसके सीक्वेंस ऑफ इवेंट को चेंज करेगा। So similarly, there is a type which is called delayed branch. So today we will discuss what is the role of the delayed branch instructions. All these things we have already discussed. So today we will have to discuss this particular, what is the delayed branch. So this scheme, as I've already told to you, whenever you will have to do some sort of shifting, reshuffling of the instructions within the compiler, within the internal part, then you will have to use the micro programmed control unit. क्योंकि माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यू कैन चेंज द कंट्रोल यूनिट। अगर आपको कोई नया फीचर ऐड करना है उसमें, मान लीजिए पहले कंट्रोल यूनिट में वो नहीं है, तो आप उसमें एक
उस पर्टिकुलर फीचर के लिए जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन चाहिए वो आप उसके कंट्रोल यूनिट में रख दो, तो वो अपने आप वो फीचर अपने आप ऐड हो जाएगा। बट हार्डवायर कंट्रोल यूनिट में अगर आपको एक भी फीचर चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू चेंज द हार्डवेयर, आपको हार्डवेयर पार्ट चेंज करना पड़ेगा। जैसे हमने अभी जो फ्लश या स्टॉल मेथोडोलॉजी थी उसमें हमने देखा कि अगर सेकंड स्टेज से हमें अगर एड्रेस कैलकुलेशन वाला पोर्शन को फर्स्ट थर्ड स्टेज से सेकंड स्टेज में लेके जाना है तो हमें हार्डवेयर चेंज करना पड़ा। बट इन द केस ऑफ माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट देयर इज नो नीड टू चेंज एनी हार्डवेयर, only set of instruction will have to be changed and accordingly you can add or delete the feature or functionality of the control unit। यानी आप कंट्रोल यूनिट की जो रेंज है वो आपके पास ज्यादा हो जाती है और वो फ्लेक्सिबल होती है, क्योंकि सॉफ्टवेयर से आप उसको फीचर ऐड भी कर सकते हो और जो आपको फीचर नहीं चाहिए, आपको लगता है कि नहीं ये तो मुझे चाहिए नहीं, यू कैन डिलीट एज वेल। सो दैट इज व्हाई दिस पर्टिकुलर delayed branch methodology to improve the branch letter instructions, the performance of the branch letter instructions can be done in microprogrammed control unit. This is the one. Okay. So still now we have discussed that the what will be the pipeline behavior। जो हमने डीलक्स पाइपलाइन स्ट्रक्चर पढ़ा है उसमें हमने एक चीज पढ़ी है कि अगर हम इम्प्रूव्ड या रिवाइज डेटा पाथ यूज कर लें अपने कंट्रोल प्रोसेसर में, तो हमारे पास जो पाइपलाइन स्ट्रक्चर में जो डिले का स्लॉट रहता है, जो एक्स्ट्रा क्लॉक साइकिल ये कंज्यूम कर रहा है ड्यू टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द ब्रांच लेटर इंस्ट्रक्शन, दैट विल लिमिटेड टू 1 ओनली। 3 से 1 तो हमने पहले ही हार्डवेयर डेटा पाथ को इम्प्रूव करके कर लिया, बट वो एक जो स्लॉट वो ले रहा था क्लॉक साइकिल वो इम्प्रूव नहीं हो रहा था ड्यू टू द ब्रांच इंस्ट्रक्शन। उसको हम कैसे करेंगे, यानी we will have to do the arrangement in a such a way that we must be able to reduce that particular 1 clock penalty as well। उस पेनल्टी को अगर हम रिड्यूस कर सके तो उस मेथोडोलॉजी की तरफ हमें आज डिस्कस करना, दैट इज कॉल्ड डिलेड ब्रांच। बिफोर वी विल गो, आई विल गो एंड एक्सप्लेन व्हाट विल हैपन इन दिस केस। आई विल वांट टू एक्सप्लेन दिस इंस्ट्रक्शन। लेट्स सपोज दिस इज वन प्रोग्राम, ये कोई प्रोग्राम हमारे पास लिखा हुआ है, हमने एक इंस्ट्रक्शन लिखी ये वाली ऐड R1, R2, R3, उसके बाद उसको स्टोर करवा लिया। यहाँ पे कोई एक इंस्ट्रक्शन हमने, दिस इज एग्जांपल ओनली और हाइपोथेटिकल केस मैंने कंसीडर किया है कि आपको एक्सप्लेन आप समझ पाओ कि चीज कैसे होगा कैसे। ये इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे हमने क्या करना है कि ब्रांच इफ इक्वल टू 0 R1 टू टारगेट, मीन्स यहाँ पे हमने एक कंडीशन रख दी कि अगर इस रिजल्ट के बाद जो यहाँ पे हमने मैनिपुलेशन करी थी उस रिजल्ट के बाद अगर रिजल्ट जो है R1 का डेटा जो है वो 0 के इक्वल है तो टारगेट पे जाओ, अगर नहीं इक्वल है तो नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन को ही एग्जीक्यूट करो। यानी अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये 2 इंस्ट्रक्शन स्किप करके यहाँ पे आ जाएगा, अगर नहीं होती तो नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ इवेंट करेगा। तो यहाँ पे ब्रांच में 1 की पेनल्टी आएगी जब ये कंडीशन ट्रू होगी, अगर नहीं होगी तो फिर नहीं आएगी। तो यहाँ पे एक ऊपर अगर हम देखें एक ऐसी इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है जिसका इसके ऊपर तो डिपेंडेंसी है लेकिन इन दोनों के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है कि R1 में डेटा अभी स्टोर हुआ या एक क्लॉक साइकिल के बाद स्टोर हो, उसका ब्रांच रिलेटेड इंस्ट्रक्शन के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं। सो इस इंस्ट्रक्शन को तो एग्जीक्यूट होना ही है और इस इंस्ट्रक्शन के बाद ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी या नहीं होगी ये डिपेंड करेगा कि R1 का डेटा क्या है, R1 में कंटेंट्स क्या है। अगर वो 0 हुए तो नहीं होगी, अगर 0 नहीं हुए तो होगी। तो क्या कैन वी डू और कैन वी गिव सम कमांड्स ओवर कंपाइलर टू चेंज और शफल द सीक्वेंस ऑफ सच इवेंट्स इन सच ए वे दैट कि ये इंस्ट्रक्शन तो एग्जीक्यूट होने ही वाली है और यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर इसको हम इसी सीक्वेंस में भी एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे एक डेटा हजार्ड एग्जिस्ट करने की भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे ये R1 जो है रिजल्ट वो जस्ट थर्ड स्टेज में या सेकंड स्टेज में ही डिमांड करेगा कि R1 में डेटा रखो क्योंकि मुझे सेव करना है, लेकिन वो R1 में डेटा रेडी होगा जब राइट बैक होगा। तो यहाँ पर भी हमें वो अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो कैन वी डू सम सॉर्ट ऑफ अरेंजमेंट, कैन वी स्वैप दीज 2 इंस्ट्रक्शंस ताकि ये ब्रांच इंस्ट्रक्शन जो यहाँ पे चली जाए जो कि इसके ऊपर डिपेंड कर रही है और ये नीचे आ जाए, इसको तो एग्जीक्यूट होना ही है। देन व्हाट विल हैपन इन दैट पर्टिकुलर केस, दिस ब्रांच इंस्ट्रक्शन whatsoever the time will it take to decide or prepare the result or prepare the address for the target, meanwhile
this instruction which is independent from this can execute its operation. तो उससे क्या होगा, जो एक क्लॉक साइकिल का डिले अभी भी हमारे पास आ रहा था वो भी रिमूव हो सकता है. दिस इज ए वन हाइपोथेटिकल केस. ऐसा नहीं है कि यही एक केस है, ये एक केस है कि ये हम क्यों कर रहे हैं. इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पे ब्रांच अगर इसके बाद वाली इंस्ट्रक्शन इस डिसीजन के ऊपर डिपेंडेंट है तो फिर तो डिले आएगी ही आएगी, क्योंकि ये कैलकुलेशन करेगा, डिसाइड करेगा, फिर जाके इसको एग्जीक्यूट करना है या नहीं करना है डिसाइड करेगा. बट अगर हम कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन इसके नीचे रख दें कि जिसको एग्जीक्यूट करना ही है, विच इज नॉट डिपेंड्स अपॉन द डिसीजन, तो उससे यहाँ पे जो एक क्लॉक साइकिल का डिले आ रहा था वो भी डिले जो है वो नहीं आएगा. So this particular methodology is called branch delay. What is it is called? Branch delay. और इस इंस्ट्रक्शन के बाद जो ब्रांच डिले एक साइकिल की आने वाली है वहां पे जो हम स्लॉट क्रिएट करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रांच डिले स्लॉट. दैट इज कॉल्ड व्हाट? ब्रांच डिले slot. In our case, as we have already discussed that in a DLX pipeline structure, as per the behavior of the pipeline structure, हमें सिर्फ एक क्लॉक साइकिल की डिले ही मिलती है आफ्टर द रिवाइज डेटा पाथ. तो हम लोग एक ब्रांच डिले स्लॉट ही क्रिएट करेंगे. अगर कोई ऐसा प्रोसेसर या ऐसा पाइपलाइन स्ट्रक्चर जिसमें एक से ज्यादा ब्रांच लाइन, एक से ज्यादा क्लॉक साइकिल की डिले जनरेट होती हो, तो उतने ही स्लॉट क्रिएट करने पड़ेंगे. मींस after the execution or after the branch instruction, we will have to create the number of slots, and those number of slots will be called branch delay slot. वो क्या होंगे? branch delay slot. Means whatsoever the slots will be created due to the execution of the branch instruction will be called what? branch delay slot. इस केस में हमें एक ही क्रिएट करना है, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि एक क्लॉक साइकिल की ही डिले जो है वो आएगी. Okay, so that is why if we look at this, so now again we will consider the two different conditions. One, branch is taken, another branch is not taken. वो दो कंडीशन तो रहेंगी कि ब्रांच अगर एग्जीक्यूट होगी तो क्या होगा, ब्रांच अगर नहीं एग्जीक्यूट होगी तो क्या होगा, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या डिले आएगी या नहीं आएगी. मान लीजिए हमने यहाँ पर भी वही एग्जांपल जो मैंने कहा था कि उसी एग्जांपल के अकॉर्डिंगली कर दिया कि हमने यहाँ पे वो इंस्ट्रक्शन जिसका इस ब्रांच के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं था एग्जीक्यूट होने से या ना होने से, वो हमने नीचे ले आया और इसको ऊपर ले गए, तो हम डिसीजन यहाँ पे ले लिया. तो व्हाट इज कॉल्ड अनटेकन ब्रांच इंस्ट्रक्शन. मान लीजिए कि यहाँ पे अनटेकन ब्रांच इंस्ट्रक्शन है, ये इंस्ट्रक्शन की कंडीशन ट्रू नहीं होगी. तो इन दैट केस व्हाटसोएवर द ब्रांच डिले स्लॉट वी विल क्रिएट and whatsoever the instruction will be write, it is called say i+1. मान लीजिए वो i+1 इंस्ट्रक्शन है. तो जैसे ये ब्रांच इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई, अब हम मान लीजिए इसकी कंडीशन ट्रू नहीं हुई, तो ये क्या कहेगा, अनटेकन ब्रांच इंस्ट्रक्शन, या ये हम कह दें कि ब्रांच इंस्ट्रक्शन इज नॉट टेकन. अगर ब्रांच इंस्ट्रक्शन नहीं ली तो भी जो ब्रांच डिले स्लॉट में इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है दैट विल एग्जीक्यूटेड. इसके नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ इवेंट की अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट होगी ही होगी. पहले ये वाली हमने अगर मान लीजिए नीचे कर लिया, इसको ऊपर ले गए, तो ये ब्रांच कंडीशन इसने चेक किया, ट्रू नहीं हुई, तब भी इसको ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है. अगर ट्रू होती तब भी इसको ये इंस्ट्रक्शन तो एग्जीक्यूट करनी ही थी, क्योंकि हमने इसको इसका स्लॉट पार्ट मान लिया कि तब तक ये एड्रेस टारगेट होगा, यानी इसको फ्लश आउट नहीं करेगा, इस इंस्ट्रक्शन को तो एग्जीक्यूट होना ही. इफ ब्रांच विल नॉट बी टेकन देन आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड, जो कि ब्रांच डिले स्लॉट में पड़ी हुई यहाँ पे ब्रांच डिले इंस्ट्रक्शन है. उसके बाद इसका रेगुलर इवेंट जो है इंस्ट्रक्शन i+2 एग्जीक्यूट होगी, यानी ये इंस्ट्रक्शन होगी, फिर ये होगी, और उसके अकॉर्डिंगली सीक्वेंस ऑफ इवेंट चलता रहेगा. तो इफ वी लुक एट दिस, इफ ब्रांच विल नॉट बी टेकन एंड विल दिस पर्टिकुलर अरेंजमेंट डिलेड ब्रांच, यानी कि ब्रांच यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रही थी, उसको हम ऊपर ले गए, या उसका सीक्वेंस ऑफ इवेंट इस तरह से एडजस्ट कर लिया कि डिले स्लॉट जो पहले आ रहा था वहां पर भी हम एक ऐसी इंस्ट्रक्शन डाल दें जिसका इम्पैक्ट ब्रांच के ऊपर ना हो, तो क्या होगा, हमारा जो एक साइकिल का डिले आ रहा था वो भी रिमूव हो जाएगा. ये तो हमने केस लिया ब्रांच इज अनटेकन और नॉट टेकन. व्हाट विल हैपन इफ ब्रांच विल बी टेकन. अगर ब्रांच हम ले लें तो तब क्या होगा, इफ ब्रांच विल नॉट बी टेकन. नाउ वी विल कम टू दिस. If branch will be taken, then again these two instructions will remain same.
ये तो वही रहेंगी। यहाँ पे जो ये वाली, मान लीजिए कि ये इंस्ट्रक्शन नीचे आ चुकी है और ये ऊपर चली गई, तो ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। ये यहाँ पे पहले फैच होगी, यहाँ पे डी कोड होगी। जब ये डी कोड होगी, इस इंस्ट्रक्शन के बाद इसके पास एड्रेसेस जनरेट होंगे अगर हम मॉडिफाइड वे भी जाएं। मीनवाइल ये इंस्ट्रक्शन फैच हो चुकी है, ये इंस्ट्रक्शन फैच हो चुकी है, तो ये अपने नॉर्मल सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली थर्ड क्लॉक साइकिल में इसको डी कोड करेगी। और ये अगर ब्रांच एग्जीक्यूट होगी, यानी यहाँ पे अगर तो इसने एग्जीक्यूट करना है, तो अगर इसने कंडीशन ट्रू है तो ये ब्रांच टारगेट यहाँ पे इसको मिल जाएगा और फिर ये नेक्स्ट टारगेट वाला इंस्ट्रक्शन को फेच कर लेगी, यानी ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पे जंप कर जाएगी। लेकिन इसके बाद जो स्लॉट वाली इंस्ट्रक्शन है, ब्रांच डिले स्लॉट में जो इंस्ट्रक्शन पड़ी है, वो अपने नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन को फॉलो करते हुए एग्जीक्यूट होगी ही होगी। यानी इस इंस्ट्रक्शन के बाद एक स्लॉट को छोड़कर यहाँ पे कौन सी इंस्ट्रक्शन होगी, ये डिपेंड करेगा कि ब्रांच टेकन है या ब्रांच नॉट टेकन है या ब्रांच टेकन है। तो ब्रांच अगर नॉट टेकन है तो नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन की इंस्ट्रक्शन को फेच करेगा यहाँ पे थर्ड क्लॉक साइकिल में। अगर ब्रांच टेकन है तो यहाँ तक इसके पास एड्रेस जनरेट हो चुका होगा, तो ये इसको नए एड्रेस से इंस्ट्रक्शन को फेच कर लेगा। यानी देयर विल बी नो इम्पैक्ट ऑन दिस पर्टिकुलर स्लॉट, देयर विल बी no impact on this particular slot. This slot, whatsoever the instruction will be there at this particular slot, which is there, will be called branch delay slot, will have to be executed under any circumstances, either branch is taken or branch is not taken. Okay, so this is what we can call is delayed branch, which is used a methodology or method used to reduce the impact of the branch related instructions on the performance of the pipeline structure. Is it okay? If you have any doubt, can ask the question. Otherwise, we'll move to the next part. That is, अब ये है कि मैंने तो अभी एक केस लेकर ही आपको ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाया है। एक ही मैंने केस लिया है, ये वो एक केस हो सकता है, लेकिन देयर आर many more situations can occur. Then what will we do? What type of the different situations which can occur and how can we handle those situations? अगर सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंगली वो अलग अलग सिचुएशन है तो उसको हैंडल कैसे करेंगे? So the instruction in the branch delay slot must, यहाँ पे B है, it's not B, it is be valid and useful. So the branch instruction in the branch delay slot must be valid and useful. ये valid होगी under any circumstances, जो भी आप branch delay slot पे निकालोगे। अब ब्रांच डिले स्लॉट्स कितने होंगे? जैसे हमारे केस में हमने ये डिस्कस किया है कि हमारे केस में एक ही स्लॉट होगा। डिले स्लॉट कितने होंगे? एक इंस्ट्रक्शन का। वो हमने इसलिए अज्यूम किया क्योंकि हम ऑलरेडी इतनी एनहांसमेंट कर चुके हैं उसके हार्डवेयर में कि एक क्लॉक साइकिल की ही डिले आती है। अगर किसी प्रोसेसर में मान लीजिए डिले आती ही नहीं है ब्रांच से, उसमें इस पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी को यूज करने की जरूरत नहीं। अगर किसी में 2 स्लॉट की आती है तो यहाँ पे हमें डिले के स्लॉट भी 2 रखने पड़ेंगे। किसी में 3 की आती है तो यहाँ पे डिले के स्लॉट भी 3 रखने पड़ेंगे। इन आवर केस, इन आवर एग्जांपल DLX डेटा पाथ, वी रिक्वायर्ड टू फिट और फिल ओनली वन इंस्ट्रक्शन इन द वन डिले स्लॉट क्रिएटेड बाय आवर प्रोसेसर। ओके, सो What are the different way to schedule the branch delay slot? ये भी एक तरह से शेड्यूलिंग ही है। ब्रांच डिले जो शेड्यूल हो रहा है, ये भी एक तरह से शेड्यूलिंग हो रही है बाय माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट। So there are some ways to schedule the branch delay. Number 1 is called what? From before. This is what called from before. कहाँ से लेंगे हम? From before, पहले से लेंगे। From target, इसमें क्या है कि हम टारगेट से लेंगे, from target, and then from fault के जो जिसके थ्रू हम निकल के जा रहे हैं उसमें से कोई एक इंस्ट्रक्शन लेंगे जो उस डिले स्लॉट में फिट करने की कोशिश करें। Okay, so these are the 3 different methods or methodologies which we will use to achieve it. So the first one is what? From before. पहला क्या है? From before. So what will be there? We will try to schedule an independent instruction. मैंने आपको पहले भी कहा कि एक independent, अब dependent instruction नहीं move कर सकते, क्योंकि dependent instruction जो है अगर move करोगे तो there will be impact on the sequence of events.
तो आप एक इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन को मूव करोगे जो ब्रांच के ऊपर, जो ब्रांच जो है उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है. Then what will you do? You will schedule that independent instruction from the before the branch, ये जो ब्रांच से पहले पड़ी हुई है, in the branch delay slot, वो आप ब्रांच डिले स्लॉट पे फिट करोगे. एंड दैट particular shifting or scheduling of independent instruction will not impact, make sure that scheduling of that particular instruction will not impact on the actual sequence of events of the program. Means that there will be no impact on the overall task of the program. ओवरऑल टास्क के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए. हाँ, कोई एक फंक्शन पहले या बाद में हो जाए उस, और वो उसके ओवरऑल टास्क के रिजल्ट के ऊपर कोई इम्पैक्ट ना कर रहा हो, यही हमें पहले सबसे पहले चेक करना. दैट इज व्हाई द इंडिपेंडेंट वर्ड इज रिटन ओवर हियर. सो दैट इज व्हाई वी विल सिलेक्ट व्हाट इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन. ओके, so the instruction in the branch delay slot is always executed. It will have to be executed. मैंने ये कहा है आपको पहले कि जो ये अरेंजमेंट आप कर रहे हो और जो डिले स्लॉट में रख रहे हो, उस इंस्ट्रक्शन को हमेशा एग्जीक्यूट होना ही है. ऐसा नहीं आप कह सकते कि कंडीशन ट्रू है तो एग्जीक्यूट होगी या नहीं होगी, कंडीशन ट्रू नहीं है तो नहीं होगी. नो, whatsoever the instruction you will fit into the delay slot, that instruction will have to be executed after the completion of the delay instruction. Either the condition is true or not, either the branch is taken or not, in both cases. Okay, so we'll try to understand this concept with the help of this example. Let's suppose this is one example, almost वैसी ही मिलती जुलती है. मान लीजिए यहाँ पे कोई एक इंस्ट्रक्शन है, add r1, r2, r3. इसमें आप क्या कर रहे हो? You are going to add the result or the operand of r2 and r3, and whatsoever the result after the addition will have to be stored into the r1. और मान लीजिए नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है आपकी यहाँ पे ब्रांच. ये ब्रांच इंस्ट्रक्शन है. मान लीजिए ये लिखा हुआ है बी ई, ब्रांच इज नॉट इक्वल BEN QZ. वो मान लीजिए BEQZ है, तो उसका मतलब है कि ब्रांच इफ नॉट इक्वल R2 टारगेट. तो यहाँ पे कंडीशन कौन सी चेक कर रहा है कि R2 0 है या नहीं. उसके बाद ये जंप कर रहा है, अगर ट्रू है, 0 है, तो यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है उसको एग्जीक्यूट कर रहा है. अगर ट्रू नहीं है तो नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को ट्रू फॉलो कर रहा है. ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन इससे पहले है, ब्रांच से जस्ट पहले इंस्ट्रक्शन है, दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द ब्रांच लेटर इंस्ट्रक्शन. अब ब्रांच लेटर इंस्ट्रक्शन के ऊपर कंडीशन कौन सी इंपोज्ड है? R2. लेकिन जो इससे पहले इंस्ट्रक्शन है वो किसको इंपैक्ट कर रही है? R1 को. तो यानी R2 में तो डेटा ऑलरेडी पहले ही है. इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने से या ना होने से R2 के कंटेंट्स के ऊपर कोई इंपैक्ट पड़ने वाला नहीं है. R2 कंटेंट्स विल रिमेन सेम, क्योंकि वो तो हम पहले वाला ही यूज कर रहे हैं. तो रादर देन कि इस कंडीशन इंस्ट्रक्शन को हम इस इंस्ट्रक्शन के बाद पुट करें, हम अगर इस इंस्ट्रक्शन को नीचे ले आए डिले स्लॉट में और इस कंडीशन इंस्ट्रक्शन को ऊपर ले जाएं, तो क्या होगा? इफ R2 will be equal to 0, then jump to this, otherwise follow this sequence. तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन जो ब्रांच रिलेटेड इंस्ट्रक्शन है वो R2 की वैल्यू को चेक करेगा. अगर R2 0 हुआ तो यहाँ पे जंप करेगा. अगर R2 0 नहीं हुआ तो नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा. बट ड्यू टू द delayed branch methodology, it will have to complete this particular instruction under any circumstance. तो ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद ये इंस्ट्रक्शन भी एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद ये यहाँ पे जंप करेगा. तो क्या होगा? whatsoever the delay will have to be introduced to complete or to calculate the addresses required to jump to the required target, whatsoever the delay of one clock cycle will be introduced, at that particular delay, this instruction will be executed, and it will become a mandatory execution under any circumstances, either the condition of R2 is true or not. So this is called what? Delayed branch instruction, and the type of delay slot is called from before.
From before means what? Put a instruction or copy a cut a instruction from the instructions which are going to be executed before the schedule of the branch instruction and then paste it to the delay slot. और उसको अपने डिले स्लॉट के ऊपर पेस्ट कर दिया तो उससे इसके सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स के ऊपर भी कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ और यहाँ पे जो एक क्लॉक साइकिल की डिले आ रही थी वो भी खत्म हो गई. इज इट ओके? So this is the way in which we will call it. Is called what? From before. इसको क्या कहेंगे हम? It is a type of scheduling. It is a type of methodology which is used to reduce the delay. Introduced use the branch instruction. Okay. So this is the one way जिसमें हम ब्रांच इंस्ट्रक्शन से पहले वाली किसी एक इंस्ट्रक्शन को उठा करके नीचे ले आएंगे जिसका इम्पैक्ट उसके सीक्वेंस ऑफ इवेंट यानी इस ब्रांच लेटर इंस्ट्रक्शन के ऊपर कोई नहीं होगा कि वो पहले एग्जीक्यूट हो या बाद में एग्जीक्यूट हो, उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. ओके, सो दिस इज कॉल्ड फ्रॉम बिफोर. नेक्स्ट इज कॉल्ड फ्रॉम टारगेट्स की. कहाँ से हम करना है? फ्रॉम टारगेट्स की. इस केस में क्या है कि मान लीजिए कोई ऐसा सर्कमस्टांसेस है, ये वाला प्रोग्राम, लेट्स सपोज दिस इज अ प्रोग्राम इन व्हिच दिस add r1 r2 r3 instruction will be executed and after the completion of this instruction we are going to check the condition and that condition is imposed on r1. पिछले केस में हमने कंडीशन r2 पे रखी इसलिए वो कंडीशन की कोई डिपेंडेंसी नहीं थी उससे पहले वाली इंस्ट्रक्शन पे, बट यहाँ पे कंडीशन किसके ऊपर हमने रखी हुई है? r1 के ऊपर. Condition is there on which register r1. So in this case we cannot shift this condition, this particular instruction to the delay slot. क्यों? क्योंकि इसी के ऊपर तो कंडीशन टिकी पड़ी है. अगर यही एग्जीक्यूट नहीं होगी तो ये कैसे ट्रू होगी? तो इसका मतलब ये तो हम शिफ्ट कर ही नहीं सकते. नाउ व्हाट विल वी डू? अब मान लीजिए कोई ऐसा सीक्वेंस ऑफ इवेंट है आपका जो उसमें आप कर रहे हो कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है then it will have to jump to instruction something like that और फिर उसको सीक्वेंस ऑफ इवेंट को पास करते हुए फिर इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है, फिर ये कंडीशन चेक करना है. यानी एक तरह से लूपिंग है. ये क्या है? एक तरह से लूप है. क्या है ये? लूप है. तो अब हम क्या करेंगे? इस इंस्ट्रक्शन को कट पेस्ट करने की बजाय क्या करेंगे? कॉपी पेस्ट करेंगे. क्या करेंगे? कॉपी पेस्ट. यहाँ पे क्या करेंगे? कॉपी पेस्ट. और इस इंस्ट्रक्शन को लूप से बाहर निकाल देंगे. क्या करेंगे? इस इंस्ट्रक्शन को लूप से बाहर निकाल देंगे और लूपिंग की जंपिंग कहां पे करवाएंगे? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन. In any case, this instruction will be executed for every loop, even if we will put this particular instruction, copy from this and paste it to delay slot over here. Then for the first loop, जो पहला loop है, उसमें तो यही इंस्ट्रक्शन अपना फंक्शन परफॉर्म करके लूप में एंटर करेगी और ये वाला सारा काम करने के बाद यहाँ पे बिफोर इट विल ज्वाइन द लूप एंड गो एट द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन due to fill that particular slot of one clock cycle which will be there due to the execution of this particular instruction. If the instruction will be true, then due to this delay slot में हमने इस इंस्ट्रक्शन को भी यहाँ पे रख दिया. तो अब ये क्या करेगी? यहाँ पे कंडीशन चेक करेगी. अगर कंडीशन ट्रू हुई तो इसको यहाँ पे जंप करके यहाँ पे जाना ही है. यहाँ पे जाते इसको पहले ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी थी, अब लेकिन उस एक क्लॉक साइकिल में ये यहाँ पे इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट नहीं करेगी. इस खाली स्लॉट में जो हमने डिले स्लॉट रखा उसमें जाके इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर देगी और यहाँ पे जाके इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के बजाय नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगी. यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन का टाइम हमारा यहाँ पे बच गया, वो जो हमने यहाँ पे डिले थी उसको भी पूरा कर दिया. ओके, सो दिस इज द वे हाउ कैन वी डू दिस. तो फ्रॉम टारगेट्स की यानी जहाँ पे आपको टारगेट करना है उसी को ही डिले स्लॉट में डाल लो, उसी को ही डिले स्लॉट में डाल लो. सो इन एनी वे, इन अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, अगर इसको लूप को पूरा होना है तब भी ये करेगा, नहीं पूरा होना है तब भी ये करेगा. ये ऑलरेडी अगर आपको याद हो जब आप व्हेन यू आर इन द आई थिंक इन द थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर व्हेन यू आर स्टडीइंग द एम्बेडेड सिस्टम कोर्स जब आप पढ़ रहे थे, वहां पे जब आप लूपिंग रिलेटेड प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे थे जिसमें आपको कई ऐसे प्रोग्राम दिए गए थे कि आपको मल्टी वर्ड या मल्टी बाइट एडिशन करनी थी, उसमें आप रिपीटेटिव एडिशन भी कर रहे थे मोर देन वन टाइम. तो उसमें आप इस तरह की प्रोग्रामिंग कर रहे थे कि यहाँ पे ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे थे बार बार. तो कई स्टूडेंट ऐसा लिखते हैं
कि कंडीशन से पहले लूप के बाहर एक बार सबट्रैक्शन या एडिशन कर लिया, उसके बाद नंबर ऑफ लूप कितनी बार चलेंगे और उसके कंडीशन के लूप के बाहर आके वो उस तरह का रख रहे थे। लेकिन वो ऑल्दो दैट विल नॉट बी दैट एक्चुअली रीशेड्यूलिंग, वो इस तरह से डिले स्लॉट क्रिएट कर रहे थे कि लूप के बाहर आकर के भी वो एक इंस्ट्रक्शन को एज इट इज एग्जीक्यूट करे। So it is almost something similar. It is not exactly same, but something similar. तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन हम इस तरह से एग्जीक्यूट करें। So what will be the advantage of this? The advantage of this will be what? Branch will be taken or not taken. Branch taken हो या ना हो, it will work and will not waste the program because it will be still executed. So it will automatically do something like that. हाँ, अगर आपको किसी प्रोग्राम में एक ही बार सबट्रैक्शन करनी है, मान लीजिए एक लूप में 2 बार नहीं करनी है, जैसे आप काउंटर के लिए यूज करते थे, वहां पे एक बार एक नंबर आपने लोड कर लिया तो एक बार काउंटर कर लेते थे रिड्यूस, फिर आप लूप में काउंटर रख लेते थे कि लूप में हर बार काउंटर जो है वो डिक्रीमेंट होता है। इट इज जस्ट समथिंग लाइक दैट। अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं मुझे लूप में ही करना है तो इसी को एक बार करना, तो यहाँ से आप कट पेस्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए। This is the way how can we reduce the number of branch penalties. Okay, this is the second type, and the third will be from fall through. इसमें लेट्स सपोज दिस इज अगेन सेम एग्जांपल कि एडिशन आपको R1 R2 R3 करना है, यहाँ पे R0 है। मान लीजिए आपके पास ऊपर ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है जिसको आप यहाँ पे नीचे ला के डिले स्लॉट में रख रहे हैं, लेकिन जो आपका सीक्वेंस ऑफ इवेंट है उसमें कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शन हैं जिनको आप डिले स्लॉट में रख सकते हैं। एंड दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी और दिस पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी विल बी वैलिड only for those cases in which the probability of the branch related instruction is not taken. The probability of not taking branch is very high as compared to the branch taken. कि जैसे मैंने आपको कल भी एक एग्जांपल दी थी कि मान लीजिए आपके पास 100 नंबर है, इसमें से स्कैन करके आपको कोई उसमें से 100 नंबर में से एक कोई वैल्यू है 55, तो आपको वो 55 वैल्यू ढूंढनी है, तो वो 100 में से कोई एक है, तो यानी 99% अगर वो लास्ट नंबर भी हुआ तो प्रोबेबिलिटी ये है कि 99% टाइम्स तो वो ब्रांच नॉट टेकन होगी, सिर्फ एक ही बार टेकन होगी। जैसे ही टेकन होगी उसके बाद हम लोग बाहर आ जाएंगे लूप के बाद, उसके बाद हमें बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं। सो इन सच केसेस यू कैन डू whatsoever the sequence of event you want to perform। जैसे ये और है, आप इस इंस्ट्रक्शन के केस में क्या करना है कि जैसे ये कंडीशन ट्रू होती है तो इसको यहाँ पे जंप करना है, यहाँ पे जंप करना है। अगर आपको याद हो तो लास्ट सेमेस्टर में आप ऐसे कुछ प्रोग्राम किया करते थे, पर्टिकुलरली उस प्रोग्राम्स में जहाँ पे आपको एडिशन विद कैरी करना पड़ता था कि ऐड विद कैरी, यानी प्रोबेबिलिटी कैरी आने की है और नहीं भी है, तो आप कुछ ऐसा यहाँ पे अरेंजमेंट करते थे कि अगर एडिशन के बाद कैरी नहीं आए तो सीधा जंप कर जाए और नेक्स्ट नंबर को ऐड कर ले। अगर कैरी आए तो एक रजिस्टर को आप खाली कर लेते थे, उसमें आप कैरी की वैल्यू हर बार इंक्रीमेंट करते जाते थे कि कैरी 1 कैरी 2 कैरी 3। यानी एक तरह से ये होता था कि अगर कैरी आए तो इंक्रीमेंट करके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को ऐड करें, अगर नहीं आए तो इस पर्टिकुलर एक इंस्ट्रक्शन को स्किप करके यहाँ पे करें। तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, फॉल थ्रू। इसको क्या कहते हैं कि फॉल थ्रू, के इसको थ्रू जाना है, उसको क्या करोगे आप उस पर्टिकुलर डिले स्लॉट में रख लोगे और मान लोगे कि प्रोबेबिलिटी इसकी हाई है, किस चीज की, के नंबर इज इंस्ट्रक्शन और डिले ब्रांच विल नॉट बी टेकन, डिले ब्रांच विल नॉट बी टेकन। ओके, तो लेकिन अगर आप इसको ब्रांच टेकन में जाओगे देन इट इज प्योरली इट विल प्योरली वेस्टेज, ये वेस्ट कर जाएगी। यहाँ पे आपको ऐसा इंस्ट्रक्शन कर रहे हो लेकिन स्टिल एग्जीक्यूट करती है। जो मैंने आपको एग्जांपल दी है उस केस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका कैरी ऐसे ना हो कि अननेसेसरी एक्स्ट्रा कैरी ऐड कर जाए। तो इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आपको रखनी है जिसका इसके रिजल्ट के ऊपर कोई इम्पैक्ट ना पड़े, टारगेट का जो आपका टास्क का रिजल्ट है उसके ऊपर इम्पैक्ट ना। ओके, so this is all about the types of branch related instructions in which we can take or we can reduce what are the different methodology by using which we can reduce the number of penalties. Okay,
So if you have any question related to whatsoever we have discussed today, you can ask the question. We always welcome those students who will ask the question. But still, आप लोग क्वेश्चन पूछते नहीं। जब मैं पूछता हूँ, मेरे पास एक ट्यूट ग्रुप है, जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तो फिर आंसर नहीं देते। It is better if you will ask the question. Still I'm waiting for the questions. Oh, सर yes. सर क्विज के बारे में पूछ रहा था। वही मैं आई वाज एक्सपेक्टिंग कि क्विज के बारे में या और टॉपिक्स रिलेटेड नहीं कुछ और क्वेश्चन पूछो। यस, पूछो। सर किस प्लेटफॉर्म पे होने वाला है? मोस्ट प्रॉब्ली गूगल पे होगा। एलएमएस पे काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हमें ये फीडबैक मिली है कि एलएमएस पे काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि एलएमएस जो वो चल नहीं रहा है, तो इसलिए यस वी आर प्लानिंग टू टेक द क्विज ऑन गूगल पे। ओके सर। हमें ये फीडबैक मिली है कि कल परसों कुछ क्विजेज हुए हैं लेकिन वो प्रॉपरली हो नहीं पाए, लोड नहीं हो रहा था शायद डेटा, जैसा कुछ हमें फीडबैक मिली, तो इसलिए वी आर प्लानिंग टू गो विद गूगल पे। सर क्विज का ड्यूरेशन क्या होगा? तो 10 मिनट हो सकता है, वो लिखा होगा उसमें, इंस्ट्रक्शंस लिखी रहेंगी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मार्क्स एंड इंस्ट्रक्शन, टाइम ड्यूरेशन लिखी होगी। मान के चलो आप 10 क्वेश्चन अगर होंगे तो 10 मिनट का ही होगा मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं लगे। ये टेंटेटिव बता रहा हूँ आपको, यूज नहीं करेंगे। एनी अदर क्वेश्चन? So thanks to all of you. That is all from my side for today's lecture.